میں نے اپنی ماں باپ کی رضامندی کے خلاف جا کر شہریار کو پسند کیا تھا۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ خالصتاً میری رضامندی سے ہوتا اور اس کی دولت مردانہ وجاہت دیکھ کر میں سد بدھ کھو بیٹھی تھی۔ شروع میں سب لوگوں کی ناراضگی کے احساس سے میں بہت پریشان رہتی تھی، مگر پھر جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میری زندگی کا سب سے اہم موڑ میری شادی صرف اور صرف میری ذاتی خواہش اور مرضی پر مبنی ہوگا، تو میرے دل میں ایک غیر معمولی اطمینان اور ایک نئی طاقت کا احساس تھا۔ یہ ایک ایسا ذاتی انقلاب تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک ایسی زنجیر توڑی ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی تھی اور اب میں اپنی قسمت کی باغ ڈور کو سنبھال رہی ہوں۔ مگر آج جب شادی کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ میرے لیے ایک غیر متوقع اور شدید آزمائش کا باعث بننے والا تھا۔ میری ماں اور میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا تھا۔ ان کی محبت بھری آنکھوں میں میرے لیے فکر صاف جھلکتی تھی۔ مجھے ان کی ہر بات یاد ہے، خاص طور پر وہ جملہ میری سماعتوں میں آج بھی گونجتا ہے: بیٹی، یہ رشتہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تم اپنے خوشیوں کے بدلے اس لڑکے کو پیسہ دے کر بیاہ رہی ہو۔ یہ رشتہ عزت اور محبت کا نہیں، صرف ایک سودا ہے۔ وہ مجھے بار بار خبردار کرتے رہے کہ دولت کی چوکا چوند میں میری آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور میں مستقبل کی پریشانیوں کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے والدین کے شبہات اور محبت بھری تنبیہات کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا۔ میں نے ان کی سنی انسنی کر دی اور اپنے فیصلے پر اٹل رہی۔ مجھے یقین تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ درست ہے اور وقت ثابت کرے گا کہ میرا انتخاب بہترین تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ اتنا مشکل ہو سکتا ہے اور اس کی قیمت مجھے کتنے گہرے جذباتی کشمکش کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے سفر کی شروعات ایک بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ موڑ سے ہوئی۔ میں اپنے بچپن کے منگیترے شخص کو چھوڑ دیا جو ہمیشہ میرے ساتھ تھا اور جس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی۔ ہمارے رشتے کی بنیادیں کئی سال پرانی تھی، مگر ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ وہ غریب تھا۔ وہ برسوں سے ایک مستقل اور اچھی نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ وہ ہمیشہ تسلی دیتا تھا: تمہارے لیے میں کچھ بھی کروں گا، بس تھوڑا وقت دو، میں دن رات کوشش کر رہا ہوں، جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی اور میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس کا خلوص اور عزم قابل تعریف تھا، مگر میری جوانی کی خواہشیں اور میرے ارد گرد کی دنیا کی چوکا چوند مجھ پر حاوی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں کب تک اس انتظار میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ میں نے مالی استحکام اور فوری خوشحالی کو اس کے خلوص پر ترجیح دی اور ایک دن اپنے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور وہ جو ایک عارضی مشکل تھی میرے لیے اس تعلق کو ختم کرنے کا جواز بن گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب میری ملاقات شہریار سے ہوئی۔ میرے کالج سے آتے جاتے میرا کافی عرصے سے پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایک بہت ہی امیر اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک کشش تھی اور اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک لڑکی کو متاثر کر سکتا۔ اس کی گاڑی، اس کا لائف سٹائل اور ہر چیز میں یہاں دولت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اس کی اسودہ حالی دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ شاید یہ میری کمزوری تھی یا خواہشات کا غلبہ، لیکن میں نے اس کی دولت کو ایک محفوظ مستقبل کی ضمانت سمجھ لیا۔ شہریار نے مجھے ایک ایسی دنیا کا وعدہ دیا جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے۔ دولت کی اس چمک کے سامنے میرا سارا پرانا عہد اور میرے والدین کی تنبیہات دم توڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میرا مستقبل شہریار کے ساتھ زیادہ محفوظ اور شاندار ہوگا۔ جلدی تمام سماجی خاندانی رکاوٹوں کے باوجود ہماری منگنی ہو گئی۔ یہ میرے لیے ایک جیت کا لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جب مجھے لگا کہ میں اپنے لیے بہترین انتخاب کیا ہے۔ آج منگنی کو ایک وقت گزر چکا ہے اور ہماری شادی میں صرف ایک مہینہ باقی ہے۔ گھر میں خوشیوں اور تیاریوں کا ماحول ہے، ہر طرف شادی کی رونقیں ہیں اور ہر کوئی اس نئے بندھن کے لیے پرجوش ہے۔ میں بھی تیاریوں میں شریک ہوں، مگر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنی مرضی کا فیصلہ کیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ رشتہ میری تمام مالی اور سماجی ضروریات کو پورا کرے گا۔ لیکن اس خوشی اور تیاریوں کے بیچ ایک خاموش سوال میرے دل میں بار بار ابھرتا ہے: کیا میں نے صرف دولت دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا تھا؟ میرے والدین نے جو کہا تھا، کیا اس میں کوئی سچائی تھی؟ وہ ایک عام سی دوپہر تھی، مگر میرے لیے غیر معمولی بننے والی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شہریار اپنی چھوٹی بہن نمرا کے ساتھ کھڑا تھا۔ شہریار کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ارے، اتنی اچھی سرپرائز! میں نے خوشی سے پوچھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ ہلکے سے تھاما اور بولا: ہاں، میں نے سوچا کیوں نہ تم کو آج تھوڑا آرام دوں۔ آج ہماری آفیشیل شاپنگ ٹرپ ہے، نمرا بھی ساتھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم آج پورے دن ہمارے ساتھ رہو اور اپنی پسند کی ہر چیز خریدو۔ اس کے الفاظ میں ایک جادو تھا، ایک ایسی دعوت جو ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی۔ حالانکہ میری ماں نے ہمیشہ مجھے شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ بلا وجہ گھر سے باہر گھومنے پھرنے سے منع کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ معاشرتی طور پر صحیح نہیں ہے اور ہماری اقدار کے خلاف ہے، مگر میری آنکھوں پر شہریار کی دولت اور اس کی محبت کی ایک موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی ہر بات میرے لیے آخری حکم تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ماں کی نصیحت کو یاد نہیں کیا اور فوراً تیار ہونے کے لیے اندر بھاگ گئی۔ شاپنگ کا پورا دن بہت شاندار گزرا۔
शहरयार ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, हर दुकान पर मेरी पसंद पूछता, कीमत की परवाह किए बगैर मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ खरीद कर देता। निमरा बहुत प्यारी लड़की थी, वो भी मेरे साथ बहुत खुश थी। हमने बहुत हंसी मजाक किया, तस्वीरें खींची, एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाना खाया। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी एक खूबसूरत फिल्म का हिस्सा बन गई है और शहरयार मेरे इस शाहाना मुस्तकबिल का हीरो है। शाम कब रात में बदल गई हमें एहसास ही नहीं हुआ। जब हम मॉल से निकले तो रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। शहरयार ने अपनी नई चमकीली गाड़ी ड्राइव करते हुए निमरा को आगे बिठाया और मैं पीछे बैठ गई। मैं बहुत थकी हुई थी मगर खुशी से मेरा दिल भर चुका था। मैंने सोचा कि मेरे वालिदैन ख्वाह कुछ भी कहें, मैंने अपने लिए एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन ज़िंदगी का इंतखाब किया। हम अभी शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे ताकि ट्रैफिक से बच सकें कि अचानक हमारी गाड़ी के आगे एक पुरानी वीरान गाड़ी आकर रुक गई। 3 से 4 नकाबपोश शख्स जिनके हाथों में खौफनाक असला थे तेज़ी से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े। मैंने एक खौफनाक चीख मारी। शहरयार ने गाड़ी रोक दी, उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो डाकू हमारी तरफ बढ़े और ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खटखटाया। डाकुओं का सरदार, जिसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, उसने पिस्तौल की नाली शहरयार की कनपट्टी पर रख दी। गाड़ी से उतरो, उसने दौड़ते हुए कहा। शहरयार फौरन बाहर निकला और उसका सारा गुरूर और एतमाद हवा हो चुका था। डाकुओं के सरदार ने पीछे हमारी तरफ इशारा करते हुए शहरयार से पूछा, ये दोनों लड़कियां कौन है, सच बोलो। शहरयार की आंखें खौफ से भरी हुई थी मगर उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने लरजती हुई आवाज़ में जवाब दिया, ये मेरी बहन है निमरा और ये मेरी मंगेतर है जिससे अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। निमरा गाड़ी के अंदर फूट फूट कर रो रही थी। मेरा दिल डूब चुका था, मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर उस डाकू सरदार ने जो सवाल किया उसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया। उसने पिस्तौल का रुख नीचे किया और शहरयार की आंखों में घूरते हुए एक इंतहाई संगदिलाना मुस्कुराहट के साथ पूछा, अच्छा तो हम तुम दोनों में से किसको अपने साथ लेकर जाएं? तुम किसे बचाना चाहते हो, अपनी बहन को या अपने इस अमीर बाप की मंगेतर को? बताओ किसे हमारे हवाले करोगे? ये सवाल सुनकर मेरी सांसें सीने ही में अटक गईं। मेरी नज़रें फौरन शहरयार के चेहरे पर जम गई। मुझे यकीन था कि जो हमेशा मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत और मेरे मुस्तकबिल की कस्में खाता था वो मुझे अपनाएगा, वो मुझे देखेगा और बहादुरी से कहेगा कि मैं अपनी होने वाली बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं एक मुजस्मे की तरह गाड़ी के अंदर बैठी शहरयार को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि ये मोहब्बत का इम्तहान है। तब शहरयार ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में वो इल्तिजा और निगाहों में वो फैसला था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। वो निगाहें सरद थी, बेरहम थी, उनमें मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद शहरयार ने अपने आप को संभाला और लरजती हुई मगर साफ आवाज़ में कहा, मेरी मंगेतर को ले जाओ, मेरी बहन को छोड़ दो। इतना बोलकर उसने जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोला और बगैर मेरी तरफ देखे मुझे एक ज़ोरदार झटके से गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं सड़क की सतह पर गिरी और मेरे हाथों पर चोट लगी। मेरे हवास गुम हो चुके थे। मैं ज़मीन पर पड़ी थी और देख रही थी कि कैसे शहरयार ने अपने कीमती माल और अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे डाकुओं के सामने फेंक दिया और गाड़ी स्टार्ट की। डाकू हैरान हुए मगर शहरयार ने एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया। उसने ज़ोर से गाड़ी भगाई और तेज़ी से अंधेरे में गायब हो गया। वो मेरा मंगेतर, मेरा होने वाला शोहर, मुझे डाकुओं के रहमो करम पर छोड़कर अपनी बहन के साथ अपनी जान बचाकर भाग गया था। मैं सड़क पर अकेली टूटे हुए ख्वाबों के साथ पड़ी रही। मेरा जिस्म दर्द से छल था मगर मेरे दिल का जख्म उससे कहीं ज़्यादा गहरा था। वो डाकू मेरी तरफ बढ़े मगर उस वक्त मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे उस हकीकत पर कि मेरी सारी दुनिया, मेरी सारी मोहब्बत और मेरा गुरूर इस एक खौफनाक लम्हे में टुकड़े टुकड़े हो चुका था। मेरी मर्जी का फैसला मेरे लिए कैसा भयानक इम्तहान बनकर सामने आया था। मैं सड़क की तरीके में पड़ी थी, बेबसी और शदीद धोखे की हालत में। मेरे सामने वो मंजर फिल्म की तरह चल रहा था जब शहरयार ने मुझे अपनी मंगेतर को डाकुओं के हवाले करके अपनी बहन के साथ फरार हो गया था। मेरे वजूद में दर्द से ज़्यादा मेरे गुरूर और मेरी अकल पर पड़ी पट्टी टूटने का करब था। इसी लम्हे एक हैरत अंगेज चीज़ हुई जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर सख्त कर दिया। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। अंधेरे से एक साया नमूदार हुआ और तेज़ी से डाकुओं की तरफ बढ़ा। ये कोई और नहीं, ये मेरा कज़न था, वही जिसे मैंने उसकी गुर्बत की वजह से दुत्कार दिया था और एक अमीर शख्स की खातिर छोड़ दिया था। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। वो किसी मुहाफ़िज़ या हीरो की तरह छुप कर नहीं आया था बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ नमूदार हुआ। डाकू अभी मेरी तरफ मुतवज्जो ही हो रहे थे कि मेरे कज़न ने एक लम्हे की भी देर किए बगैर सबसे पहले एक डाकू के सर पर पीछे से ज़बरदस्त वार किया। वो डाकू लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरा। इससे पहले कि बाकी दो डाकू होश संभालते उसने बिजली की तेज़ी से बारी बारी उन दोनों के सरों पर भी डंडे से वार किया। वो तीनों डाकू दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। मैं हैरत से बुत-बनी ये सारा मंजर देख रही थी। मेरे सांसें रुकी हुई थी। वो लड़का जिसे मैंने कमज़ोर और बेरोज़गार समझा था आज वो मेरी इज्जत का मुहाफ़िज़ बनकर खड़ा था। डाकुओं के ज़मीन पर गिरने के बावजूद उन पर पल पड़ा और अपने डंडे से
उनकी बुरी तरह पिटाई करने लगा। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था जो मेरी बेइज्जती का बदला ले रहा था। कुछ ही देर में वो मुजरिमों को काबू कर चुका था। उसने फौरन अपने मोबाइल से पुलिस को इतला दी और फिर तेजी से मेरी तरफ लपका। उसने मुझे ज़मीन से उठाया। उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो मुझे लेकर अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा मेरे घर की तरफ रवाना हुआ। जब हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वो गाड़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर उतारा। उसने नहायत तअम्मुल और संजीदगी से मेरी आंखों में देखा और कहा, आज जो कुछ भी हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ। मेरी एक बात याद रखना, अपनी अम्मी और अब्बू को इस वाक़े के बारे में हरगिज़ मत बताना, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये कहकर उसने अपना सर हिलाया और बगैर मजीद एक लफ्ज़ कहे गाड़ी मोड़ी और खामोशी से वहाँ से चला गया। वो तो चला गया मगर मेरे लिए मेरे ही घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गया। मेरे अंदर की दुनिया एक लम्हे में तहस नहस हो चुकी थी। मैंने रात भर जाकर सोचा कि एक वो आदमी शहरयार जिससे मैंने अपनी पसंद और उसकी दौलत की वजह से मुंतखब किया था, वो मेरी इज्जत का मुहाफ़िज़ बनने की बजाय मुझे बीच रास्ते में डाकुओं के हवाले करके भाग गया। और एक ये शख्स है मेरा कज़न जिसे मैंने गरीब समझकर ठुकरा दिया था, उसने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी इज्जत की हिफाजत की। उस रात मुझे ये तलख हकीकत मालूम हुई कि दौलत से ज़्यादा इज्जत, गैरत और किरदार की अहमियत होती है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस शख्स पर, शहरयार पर कभी भरोसा नहीं कर सकती जो एक मुश्किल में अपनी होने वाली शरीक हयात को छोड़ जाए। वो अगर आज एक मुश्किल में मेरे साथ ये कर सकता है तो ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर मेरे साथ कोई भी गलत काम कर सकता है। अगले ही दिन मैंने अपने वालिदैन को एतमाद में लिया और इन्हें सिर्फ इतना बताया कि अब मैं ये रिश्ता नहीं चाहती। शादी से सिर्फ 1 महीना पहले इतनी बड़ी मंगनी का टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। मेरे वालिदैन हैरान और परेशान थे मगर उन्होंने मेरी कैफियत को समझते हुए मेरे साथ दिया। समाज ने मुझ पर उंगली उठाई, रिश्तेदारों ने बहुत सी बातें बनाई, मुझ पर जुमले कसे गए, ज़रूर लड़की में ही कोई खामी होगी वरना इतना अमीर लड़का क्यों छोड़ता। मगर उस बार मैं बिल्कुल खामोश और पुरसकून थी। मैंने हिम्मत से उन सब की बातों का मुकाबला किया क्योंकि मेरे पास एक हकीकत थी जो सिर्फ मैं जानती थी और इस हकीकत ने मुझे मजबूत कर दिया था। इस मंगनी के टूटने के चंद माह बाद मेरी ज़िंदगी ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। मेरे कज़न ने जो मेरा पहला मंगेतवी था मुझे एक बार फिर अपना लिया। उसने एक दिन मेरे वालिदैन से बात की और एक सादा सी तकरीब में मुझसे शादी कर ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैंने खुद को औलाद के दायरे पर छोड़ दिया। ये सोच कर कि शायद यही मेरी किस्मत है। मेरे दिल में एक डर था कि वो मुझे ताने देगा, मुझे मेरे पुराने फैसले याद दिलाएगा और मेरी गलती की कीमत वसूल करेगा। मगर उसने कभी किसी बात का एक बार भी मुझे ताना नहीं दिया। वो हमेशा मेरे साथ मोहब्बत, एहतराम और खलूस का रवैया रखता था। एक दिन जब हम दोनों बैठे माजी की बातें कर रहे थे तो उसने मुझे वो राज बताया जिसने मेरी आंखें खोल दी। जिस दिन तुम शहरयार और उसकी बहन के साथ शॉपिंग पर गई थी मैंने तुम लोगों को शहर के एक मॉल में देख लिया था। मुझे तुम्हारी फिक्र हुई क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोग किसी नामुनासिब सड़क का इंतखाब करोगे। उसने नरमी से कहा, बस इसी लम्हे मैंने फैसला किया कि मैं तुम लोगों का पीछा करूं, सिर्फ इसलिए कि अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने अपना डंडा गाड़ी में रख लिया था बस इसीलिए कि मुझे शक था कि कोई मुश्किल पेश आ सकती है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी इज्जत और हिफाजत को मेरी दौलत और हैसियत से बालातर समझा। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरा ये रिश्ता जिसे मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती समझकर ठुकराया था दर हकीकत खुदा की तरफ से मेरे लिए भेजा गया सबसे बड़ा इनाम था।